Hello, welcome learners. Welcome to Political Science Mantra. Myself Vedika Pundir, and this is my YouTube channel, continuing with the series of globalization that we have already started. But before that, please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. I know that there has been this long delay in posting videos, but I was busy due to some personal work. But now I will try to remain regular and consistent with my upcoming series. So without wasting any further time, let's get started. So as we always begin with the quote of the day, so today's quote is, "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn," by Benjamin Franklin. Now, this quote is a very powerful quote, and it highlights the very fact that not only teaching or telling a particular person regarding a particular thing will help them to learn it in a better manner, but unless and until you involve that particular person like a hands-on experience, things will remain with them for the rest of their lives. And this is actually what is learning. So learning should not be just for a period of time, but things that you learn should remain with you for the rest of your life. And even I try to keep this particular thing in my mind, and I try to incorporate in my lectures that whatever I teach you, maybe it's not that perfect, but whatever I teach you, tiny bits of a particular topic, that remains with you for the rest of your life. Okay, and you never forget it actually. So the topic for discussion today is political dimension of globalization, political globalization that we say. We have already begun with our series of globalization, and today we will try to include its various facets. Okay, so we will start with the political dimension of globalization. Later on we will also be dealing with the economic dimension, the cultural dimension, but for now, for today in this lecture, it is political globalization. We will also understand a little bit about the concept of state and statehood, because that is very integrally connected with the idea of globalization. कि ग्लोबलाइजेशन में स्टेट का, राज्य का क्या रोल होता है और कैसे राज्य का रोल ग्लोबलाइजेशन के दौरान बदला है, कैसे उसने अपने आप को इवॉल्व किया है. साथ ही साथ वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इन इंटरनेशनल सोसाइटी. हम सबको पता है कि सोवरेनिटी एज अ प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, एंड स्पेशली जब हम आईआर को डील करते हैं, जब हम स्टेट की बात करते हैं, सोवरेनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. बट कैसे सोवरेनिटी को एक होलिस्टिक मैनर में समझा गया है विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्कॉलर्स, ऑफ कोर्स वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इट. And in the last phase of our lecture, we will deal with the evolution of state. That is the journey of state, that where it had begun from the point where it started, and how in the globalized era उसने अपने आप को change किया है. So हम national level से आज हम multi level governance की बात करते हैं, right? So multi level governance क्या होता है, इसके क्या क्या डायमेंशन होते हैं, ये कंसेप्ट क्या है, इन सबको भी हम अपने लेक्चर्स में डील करेंगे और ऐसे ही अपना लेक्चर एंड करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट आई हैव मेंशन्ड इन द वेरी स्टार्टिंग. ट्रेडिशनल नेशन स्टेट्स हैव बिकम अननेचुरल, इवन इम्पॉसिबल यूनिट्स इन अ ग्लोबल इकोनॉमी बाय केनिची ओहमेन. ओके, सो ये इनका वर्क है, द एंड ऑफ द नेशन स्टेट 1996 में. और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी है कि जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन एज अ फिनोमिना की बात करते हैं, तो स्टेट्स जो है, नेशन स्टेट्स जो है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल, एक पुराना कंसेप्ट है. तो ये अननेचुरल हो चुके हैं और इम्पॉसिबल यूनिट्स हो चुके हैं. कहने का मतलब है, कहने का अर्थ है कि स्टेट का जो रेलेवेंस है ग्लोबल ऑफ टाइम, तो हमें ये समझना है कि जो ट्रेडिशनल नेशन स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने आप को ग्लोबलाइज्ड एरा में कैसे चेंज किया है. ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. इंटेंसिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल इंटर रिलेशंस अक्रॉस ग्लोब. तो पॉलिटिकल, हम इंटर रिलेशंस की बात करते हैं, मतलब कि स्टेट्स के आपस में जो रिलेशंस है वो और बदल चुके हैं, एक्सपैंड हो चुके हैं
और अब सिर्फ वो स्टेट की टेरिटरी तक लिमिटेड नहीं है, स्टेट के बियॉन्ड जा रहे हैं। तो जब हम इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, एक्सटर्नल रेल्म की बात करते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी में, तो हम इन सारे फेसेट्स को इंक्लूड करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर स्टेट्स इन डिक्लाइन और इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइवल, कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन टू बी स्पेसिफिक की बात करते हैं, क्या स्टेट खत्म हो चुके हैं, क्या उनका रोल बेकार हो चुका है, या उनका एग्जिस्टेंस नेग्लिजिबल हो चुका है, या फिर वो अपनी तैयारियों में लगे, अपने रिवाइवल की तैयारियों में लगे हैं। ठीक है, तो कैसे, या तो स्टेट डिक्लाइन हो रहा है या तो स्टेट रिवाइव हो रहा है, तो वो दोनों प्रोसेस हैंड बाय हैंड कैसे चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, इसको भी हम आगे डील करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट स्टेट सोवरेनिटी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट्स, कि गवर्नमेंट का रोल अब कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे गवर्नमेंट का रोल चेंज हुआ है, और स्टेट की जो सोवरेनिटी है उसको क्या इंपैक्ट पहुंचा है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इज द सुप्रा टेरिटोरियल सोशल स्पेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सुप्रा टेरिटोरियल की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है कि गोइंग बियॉन्ड द टेरिटरी, गोइंग बियॉन्ड द वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। ठीक है, तो जब हम सुप्रा टेरिटोरियल सोशल स्पेस के मीनिंग को देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे जो स्टेट्स हैं अब वो आगे बढ़ चुके हैं उनकी, चाहे अब हम उनकी लीगल अथॉरिटीज की बात करें, उनके ट्रेड रिलेशंस की बात करें, या फिर उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जब हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, या अगर हम ब्रिक्स यूरोपियन यूनियन जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, इवन बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो जब स्टेट्स उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपनी टेरिटरीज के बियॉन्ड सोचने का एक अटेम्प्ट करते हैं। So now these states understand कि the things are not limited by the boundaries of our nation. We need to think beyond it, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ठीक है, तो जो ये सोशल स्पेस है, जो नेटवर्क्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो एक तरीके का एक फैसिलिटेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है ग्लोबल रेल में, वो स्टेट के एक्सपेंशन, स्टेट जब अपने आप को बियॉन्ड सोचता है, किसी टेरिटरी के बियॉन्ड, तो वो सारी चीजें इनमें इनकॉर्पोरेट होती हैं। एंड ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांस एडवोकेसी नेटवर्क्स। ठीक है, जब ये ट्रांस एडवोकेसी नेटवर्क्स की हम बात करते हैं, सो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं। बेसिकली आज हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ पर्सन सिटिंग इन वन कंट्री कम्युनिकेटिंग विद द अदर। सिर्फ ये नहीं कि मैं किसी अपने फ्रेंड से, अमेरिका में बैठे हुए फ्रेंड से बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ, टॉक डिस्कस कर सकती हूँ, सिर्फ बार्गेनिंग वहां तक नहीं होती है। जब हम ट्रांस एडवोकेसी नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो यहां पर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो आपके इंटरनेशनल स्पेस में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर हम उन्हें एनजीओस कहते हैं, या फिर हम मीडिया का सहारा लेते हैं, या फिर हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे रेड क्रॉस जैसा इंस्टीट्यूशन है, या यूनाइटेड नेशंस जैसा इंस्टीट्यूशन है, ओके, सो यूनिसेफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, यहां पर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीपल आर एबल टू पार्टिसिपेट नाउ, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब हम स्टेट के सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में नहीं सोच रहे, हम स्टेट के या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बियॉन्ड सोचने का, उस वहां पे पार्टिसिपेट करने का, नेगोशिएट करने का, बार्गेन करने का, अपने राइट्स के लिए, अपने वट एवर आवर ड्यू इज देयर, अपने डिमांड्स को लेके, whatever we have, if we have certain issues regarding it, तो उन सारे इश्यूज को भी एड्रेस करने के लिए वी मेक श्योर दैट वी पार्टिसिपेट, वी एटलीस्ट कम्युनिकेट एंड पार्टिसिपेट इन दीज एडवोकेसी नेटवर्क्स। और मीडिया तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। द वे द ग्लोबल मीडिया हाईलाइट्स अ पर्टिकुलर इशू, अगर किसी भी कंट्री में कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग एटमॉस्फेयर है या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बने हुए हैं, तो द ग्लोबल मीडिया, जब बीबीसी देखते हैं आप और ये सारे जो चैनल्स देखते हैं, तो दे ट्राई टू कवर दीज मीडिया नेटवर्क्स एंड दीज newspapers and magazines, they try to cover those very issues in detail, so that world community को इनके बारे में awareness आप spread कर सको। ठीक है,
तो जब हम ये ग्लोबल गवर्नेंस नेट स्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क्स की बात करते हैं, ये भी हमारा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट बनता है। आगे हम बढ़ते हैं स्टेट एंड स्टेटहुड पे। जब हम स्टेट और स्टेटहुड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी इस बात द आइडिया ऑफ नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट देयर सम टेक्निकल ग्लिच, प्लीज एडजस्ट विद इट। ओके, so the emergence of state in the 15th and the 16th century Europe, ठीक है, the Treaty of Westphalia जिसने आपके 30 years war पर एक रोक लगाई थी, तो उसने स्टेट का एक कंसेप्ट डिफाइन किया था कि एक फॉर्मलाइज्ड मॉडर्न स्टेटहुड क्या होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली व्हेन द आइडिया ऑफ स्टेट इवॉल्व्ड दैट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ अ मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे आप पढ़ोगे, क्योंकि आपका जो सेंट्रल फोकस ऑफ एनालिसिस है वो आपकी स्टेट है, और स्टेट आपका एक मॉडर्न स्टेटहुड जब आया है वो है आफ्टर द पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में। ओके, इस स्टेट में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स वाज सॉवरेनिटी, कि सॉवरेन स्टेट होना चाहिए। स्टेट के को ये पावर होनी चाहिए कि इट कैन डिसाइड व्हाट स्टेप्स एंड डिसीजंस इट वांट्स टू टेक डोमेस्टिकली, इंटरनली, एंड एज वेल एज हाउ टू मेंटेन एक्सटर्नल इंटर स्टेट रिलेशंस, कि आप एक्सटर्नल इंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे डील करते हैं। तो ये जो स्टेट का एक सेंट्रल यूनिट ऑफ एनालिसिस है, इट एक्चुअली इवॉल्व्ड आफ्टर द पीस ऑफ वेस्टफेलिया वाज ब्रॉट इन। ओके, अब जब हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट दो तरीके से एक स्ट्रक्चर में बटा हुआ और एक ऑर्गन है। सो इट इज द डुअलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। तो जब हम एक्सटर्नल डोमेन की बात करते हैं वो आपके इंटरस्टेट रिलेशंस हो गए। जब हम इंटरनल डोमेन की बात करते हैं दैट डील्स विद हाउ द स्टेट बिहेव्स डोमेस्टिकली विद द इंडिविजुअल्स एंड विद द ग्रुप्स, की स्टेट का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से या डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे उसकी सिटीजन्स हैं, उसके अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे वो कैसे डील करता है एंड हाउ इट ट्राइज टू मैनेज द थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। तो डोमेस्टिक रेल्म है और साथ ही साथ एक एक्सटर्नल इंटरस्टेट रेल्म प्रेजेंट होता है। One of the very important landmark events that happened was the Montevideo Convention, and this took place in 1933. और यहाँ पर स्टेट के बारे में एक डिक्लेरेटरी थ्योरी है। डिक्लेरेटरी थ्योरी बेसिकली मीन्स दैट जहां आप डिक्लेयर करते हो एक आर्टिकल के थ्रू, एक यू हैव अ लीगल फॉर्मलाइज्ड डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप डिक्लेयर करते हो कि क्या क्या स्टेट के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑर्गन्स हैं और उसके क्या क्या फीचर्स है, like defined territory, permanent population, effective government and capacity to enter into relations with the other state। आपके अंदर capacity है कि आप दूसरे state से interact कर सकते हो, ठीक है। like the peace of Westphalia, similarly the article 1 of Montevideo Convention dealt with all these 4 chief characteristics and features of the state, ठीक है। और स्टेट के बारे में इन्होंने एक डिक्लेरेटरी थ्योरी प्रेजेंट करी। नाउ स्टेट इज ऑल्सो सीन एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन, क्योंकि स्टेट को बहुत ही डिफरेंट तरीकों से एनालाइज किया गया है, दैट हाउ इट बिहेव्स, हाउ इट फंक्शंस, व्हाट इज इट्स रोल, okay, what kind of features it has. So a very important political philosopher, Max Weber, he tried to, sociologist actually, he was a sociologist, so यहाँ पर उन्होंने बोला है state as a instrument of domination, कि जो स्टेट है वो डोमिनेशन का एक मीन्स है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके पास मोनोपोली है ऑफ द मीन्स ऑफ यूजिंग द लेजिटिमेट वायलेंस। अगर स्टेट वायलेंस का इस्तेमाल करता है तो वहां पे कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज इट हैज द लेजिटिमेसी ऑफ द पीपल। तो इसके थ्रू वो स्टेट it tries to dominate the other individuals or other sub parts which are present within the state, ठीक है। तो स्टेट का एक बहुत थोड़ा सा नेगेटिव रोल इन्होंने दिखाया है, जहां पर इनका मानना है कि जो स्टेट है इट एक्ट्स लाइक अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन, ठीक है, एंड इट हैज द मीन्स ऑफ लेजिटिमेट वायलेंस। इसकी मोनोपोली है, इसको पूरा अधिकार है कि वो वायलेंस का इस्तेमाल कर सकता है, एंड दैट इट डज इट सो स्मूथली कि आपको ये चीजों का रियलाइजेशन भी नहीं होता, यू नेवर अंडरस्टैंड दिस वेरी फैक्ट कि ये गलत है, स्टेट ने वायलेंस एक्सर्ट किया है, ठीक है।
Next we come to the billiard ball model of world politics. ठीक है, बिलियर्ड बॉल्स, यू मस्ट हैव प्लेड दैट पर्टिकुलर गेम. उसी गेम के स्ट्रक्चर पे रियलिस्ट ने एक मॉडल प्रेजेंट किया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखने का. रियलिस्ट कौन है? आई विल नॉट रिपीट इट बिकॉज ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है जब हम अप्रोचेस पढ़ रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस के. व्हेन आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ द रियलिस्ट कि रियलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस को और पॉलिटिक्स को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं. ठीक है, इनके अनुसार द स्टेट्स लाइक एक्ट लाइक द बिलियर्ड बॉल्स. जैसे बिलियर्ड बॉल्स होती है, आपने अगर वो गेम देखा होगा, इफ एवर इन योर लाइफ यू हैव सीन इट और यू हैव इवन प्लेड इट, तो बिलियर्ड बॉल्स जैसा स्टेट का एक स्ट्रक्चर होता है और जैसे बॉल्स एक दूसरे से टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, सिमिलरली स्टेट्स भी इंटरनेशनल रेल्म में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. और जो सोवरेनिटी है, ठीक है, जो उनकी सोवरेनिटी है, सॉवरेन डिसीजन मेकिंग है, वो उस बॉल का आउटर शेल है. ठीक है, और वो काफी हार्ड होता है. इट्स इम्पेनिट्रेबल. ओके, सो जितना हार्ड ये शेल होगा, जितना इम्पेनिट्रेबल ये शेल होगा, उतना वो इट विल बी एबल टू विदस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन. ठीक है, जितना उसका स्ट्रॉन्ग सोवरेनिटी होगी किसी भी स्टेट की, तो वो उसको पावर देगी, मजबूती देगी कि जब वो दूसरे स्टेट से टकराता है, जब वो दूसरे स्टेट से इंटरैक्ट करता है, सो इट इज नॉट इट ट्राइज टू गिव अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन. ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन देता है और वो स्टेट को तोड़ने में, मतलब इसको स्टेट को तोड़ने का ना वो पूरा प्रोसेस कर सकता है. ठीक है, तो जितना हार्ड उसका शेल होगा, जितनी सोवरेनिटी उसकी हार्ड होगी, उतना बेटर उसकी परफॉर्मेंस होगी विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ठीक है, तो ये शेल ही है, ये सोवरेनिटी ही है जो एक स्टेट को मजबूती देती है, स्ट्रेंथ देती है, सो दैट इट कैन एक्ट लाइक अ मीनिंगफुल एक्टर इन द इंटरनेशनल रेल्म, इंटरनेशनल डोमेन. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं सोवरेनिटी पे, क्योंकि सोवरेनिटी की ही बात हो रही है. व्हाट इज एक्चुअली सोवरेनिटी? सो बोडेन एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है. उनका मानना है कि सोवरेनिटी इज द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ. ठीक है, ये इसकी एब्सोल्यूट पावर है. उनके पास ये पावर है, इनेट पावर है एक स्टेट की, कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर हम देखते हैं लाइक इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, मेनी ऑफ द स्टेट्स यू आर फेसिंग सोवरेनिटी इश्यूज. बहुत सारे स्टेट्स हैं जो सोवरेनिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं, और उसका एकमात्र कारण ये है बिकॉज their government has become weak, they have become fragile, their institutions are not working properly, and this may be one of the reasons कि क्यों external intervention ऐसी countries में common हो जाता है in order to make peace of course. ठीक है, सो सोवरेनिटी होना, आपकी सॉवरेन डिसीजन मेकिंग होना, कि आप इंटरनली क्या डिसीजंस लेते हैं, एक्सटर्नली क्या डिसीजंस लेते हैं. व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो वहां पर आप अपने स्टेट का क्या औहदा, क्या स्टेटस, क्या स्टैंड लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर मैं एग्जाम्पल दूं, वेरी रूडिमेंट्री एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान, वी ऑलरेडी नो दैट कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज. ओके, but whenever the issue of Kashmir is taken up at the international level, at the global level, India sticks to the particular fact that this is a bilateral issue and we will deal it with our own self. ठीक है, कि यहां पर हमें किसी भी external actor की, unless and until the things of course go out of hand, unless and until things go out of hand, this is a bilateral issue between India and Pakistan, and we will resolve it eventually. We have our own standpoints and we will resolve it eventually. तो यहाँ पे हम किसी भी external actor, whether it's America, whether it's any other Western power, उसका invitation, बीच में दखल अंदाजी देना, या फिर दोनों इस बायलेटरल इशू को एक एक्सटर्नल तरीके से उसको देखना या उसमें इंटरवेंशन करना, पेनिट्रेट करना, ये सारी चीजें इंडिया इज नॉट इन फेवर ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पे यही तो इंडिया की सोवरेनिटी है, सॉवरेन डिसीजन मेकिंग है, कि इफ दिस इज अ बायलेटरल इशू वी विल डील इट बायलेटरली, वी डू नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन. ठीक है, तो यहाँ जितनी आपकी सोवरेनिटी, हार्ड शेल जो आपका हार्ड होगा, जितना आपका स्टैंड पॉइंट हार्ड होगा, दैट डिफाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, दैट इंडिया इज नॉट अ वीक स्टेट.
इंडिया इज नॉट अ फ्रेजाइल स्टेट एंड वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग आवर डिसीजंस. ठीक है, हम अपने खुद के डिसीजंस लेने के काबिल हैं. ठीक है, वी हैव दैट इन अस and we will do it eventually. So we do not need any sort of external intervention. ठीक है, तो ये sovereignty का एक पहलू है. Then sovereignty as a monopoly of coercive power vested in the hands of a single ruler or a monarch. अब ये sovereignty जो जिससे actually state को strength मिलती है, ये sovereignty किसके हाथ में होगी? ठीक है, इस सोवरेनिटी को एक्सरसाइज कौन करेगा? दैट इज अगेन मैटर ऑफ डिबेट. ठीक है, तो हॉब्स इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, और अगर आपने इनका वर्क कभी पढ़ा होगा, आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन हिज वर्क. लेवियाथा इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जहां पर ये सिंगल रूलर या मोनार्क की बात करता है, बिकॉज ही बिलीव्स दैट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज समथिंग दैट वी शुड इवेंचुअली फोकस अपॉन. ठीक है, तो सोवरेनिटी पे ये कहते हैं कि सोवरेनिटी एक कोर्सिव पावर है जो किसके हाथ में होनी चाहिए? सिर्फ एक रूलर के हाथ में होनी चाहिए, जो कि मोनार्क होना चाहिए. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू हिम सेंट्रलाइजेशन ऑफ अ पावर इज अ बेटर वे to maintain peace and order in the society. Okay, that's his perspective about the things. Okay, now we will deal with the sovereignty. Sovereignty two types की होती है: internal sovereignty, external sovereignty. इंटरनल सोवरेनिटी आपकी सुप्रीम पावर है जो बाइंडिंग होती है सिटीजन्स और ग्रुप में. डोमेस्टिकली आप अगर कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, फॉर एग्जाम्पल इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट GST हैज टू बी ब्रॉट इन, इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट पर्टिकुलर करेंसी notes needs to be discontinued and they need to be stopped. So this is a chief power of the government because it has its legitimacy. आपने वोट किया है एक सरकार को, so eventually the government in power has that kind of legitimacy that it can take the sovereign decisions. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है रूसो's जनरल विल का. रूसो इज अनदर पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड उनका कंसेप्ट है जनरल विल का. And according to him, when the people, this is because he is in favor of popular sovereignty. So Rousseau बोलते हैं कि because the will of a person, जब सब लोगों की जो actual will है, real wills है, which is actually meant for doing something positive, सारे citizens ने अपना वोट किया है. वोट भी उनका एक इंडिकेशन है, उनकी एक will का एक सिग्नलिंग है that they want this XYZ particular leader in power or this XYZ political party in power. तो जब वो पार्टी पावर में आ जाती है, जब वो लीडर या वो गवर्नमेंट पावर पे आ जाता है, so it has that sovereign authority that it can take certain decisions which will be binding on its citizens and its groups domestically. ठीक है, तो ये रूसो का मानना है. एक्सटर्नल सोवरेनिटी की बात करते हैं तो ये अनलिमिटेड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑन द वर्ल्ड स्टेज. कि मतलब जब यूनाइटेड नेशंस जब बनाया गया, जब यूनाइटेड नेशंस का आइडिया 1945 में इसे एज अ ऑर्गेनाइजेशन विच वुड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाया गया, तो वो एक्चुअली कैसे फंक्शन करेगा? इफ द स्टेट्स डू नॉट गिव रिकॉग्निशन, स्टेट उसमें रिकॉग्निशन नहीं देता है, ठीक है, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट्स इन द जनरल असेंबली और इन द मीटिंग्स, इन द कॉन्फ्रेंसेस, तो उसको सोवरेनिटी कैसे मिलेगी? तो आपकी सोवरेनिटी तब एक्सरसाइज भी होती है जब आप एक्सटर्नल रेल में पार्टिसिपेट करते हो, और ये हर एक स्टेट की अथॉरिटी है. ठीक है, if a particular state doesn't want to be a member of XYZ institution, United Nations for example, it has that sovereignty. आपने देखा है कि यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्सिट हो चुका है. ठीक है, ब्रेक्सिट हैज बीन सक्सेसफुल, वो हो चुका है, इट हैज बीन डन बिकॉज यहां पर यूके और ब्रिटेन हैड दैट अथॉरिटी, उनके पास सॉवरेन अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग की कि वी नो लॉन्गर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन. ठीक है, एंड दे इवेंचुअली बैक आउट, पुल आउट कर लेते हैं. डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में, नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू. सो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में उन्होंने अमेरिका को पेरिस द पेरिस एग्रीमेंट, द फेमस पेरिस एग्रीमेंट और द इनफेमस पेरिस एग्रीमेंट, वहां से पुल आउट किया है. ठीक है, दैट इज इट्स सॉवरेन अथॉरिटी. उन्होंने ही वो एनवायरमेंट का ढोल पीटते हैं, बट इवेंचुअली दे पुल देमसेल्व्स आउट ऑफ सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस. सो व्हाट सिग्नल डज इट सेंड टू द वर्ल्ड? तो ये चीजों पे हमें सोचना जरूरी है. ये एक्सटर्नल सोवरेनिटी का एक्सरसाइज है, बट हाउ फार इट इज गुड, बैड, पॉजिटिव, इट हैज इट्स लूप होल्स, इट हैज इट्स सक्सेसफुल स्टोरीज ऑल्सो. तो वो भी हमें देखना बाकी है.
Also, the idea of sovereignty also deals with the Hobbesian notion of anarchy. Hobbes की मैं बात करूंगी बार बार, because obviously if you've not studied Hobbes as a political philosopher, उनका क्या विचारधारा थी, तो you will have little difficulty in understanding this lecture, this part of the lecture, specifically, but ज्यादा नहीं है. हॉब्स का आइडिया एनार्की का है, क्योंकि हॉब्स बहुत एक पेसिमिस्टिक आउटलुक लेते हैं स्टेट का, ठीक है, एनवायरमेंट का, क्योंकि जिन कंडीशंस में उनका बर्थ हुआ था, उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, फियर एंड आई वर बोर्न ट्विंस, ठीक है. तो आप समझ सकते हैं, बिकॉज व्हेन द टाइम ऑफ हिज बर्थ द इंग्लिश सिविल वॉर वाज गोइंग ऑन, सो दैट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन हिज फिलॉसफी, कि वो कैसे सोचते थे, वो चीजों को बहुत ही नकारात्मक रूप से लेते थे, पेसिमिस्टिक रूप से लेते थे. उनके हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर इज नास्टी, इट्स ब्रूटिश, इट्स शॉर्ट एंड इट्स नॉट एट ऑल, पीपल आर नॉट एट ऑल ट्रस्टेबल, कि आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो लोगों को. आपके पास आपको एक लेवियाथा चाहिए, एक सिंगल मुनार्क चाहिए, उसी के रूल के अंडर द स्टेट कैन फ्लरिश, द पीपल कैन फ्लरिश. तो ये हॉब्सियन नोशन ऑफ एनार्की है. और जो इनका ये डायलेमा है, ठीक है, जो डायलेमा से ये फेस कर रहे हैं, इनमें ये दो चीजें कहते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से पीपल आर सेल्फ इंटरेस्टेड, दे आर पावर सीकर्स, ठीक है. तो उनके पास इनका सीधा सीधा मानना है कि जब एनार्की है, जब लॉलेसनेस का एक माहौल बना हुआ है, तो आप किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, लोग एक दूसरे से भरोसा उठ जाता है, लोग, पीपल आर फियरफुल ऑफ वन अनदर, ठीक है. तो इस जब पीपल, क्योंकि सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपना ही सोचते हैं, पावर सीकिंग है, उनको पावर का लोभ है, लालच है, प्यारी है, पावर प्यारा है, तो इस केस में इफ फॉर द रूलर, वहां पे वो बोलते हैं कि अनलिमिटेड पावर फॉर द रूलर क्रिएटिंग एन ऑप्रेसिव एंड प्रिडेटरी स्टेट, ठीक है. तो यहां पे अगर आप अनलिमिटेड पावर रूलर को दे देते हो ऐसे माहौल में, ऐसे बैकग्राउंड में, तो देयर आर हाई चांसेस दैट द स्टेट बिकम्स ऑप्रेसिव, द स्टेट बिकम्स प्रिडेटरी, कि स्टेट जो है वो सारी पावर को मिसयूज कर सकता है, द रूलर कैन मिसयूज इट्स पावर, ठीक है. तो यहां पर हॉब्स का सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम देते हैं, साथ साथ सॉल्यूशन भी बताते हैं. सॉल्यूशन है कि आप एक सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइड स्टेट बनाओ जिसका नाम है लेवियाथा, क्योंकि जो लोग हैं उनके पास अपनी कोई सूझबूझ नहीं है, रीजन इज अ सर्वेंट ऑफ पैशन, और इंटरनेशनल लेवल पे वो सिर्फ इन सारी चीजों की बात करते हैं कि बस टेरिटरी का सिक्योरिटी करो, टेरिटरी का प्रोटेक्शन करो. लेकिन दैट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट. अगर आप टेरिटरी को सिक्योर भी कर लेते हो, बट इफ यू बिलीव दैट पीपल आर सेल्फ इंटरेस्टेड, दे आर पावर सीकर्स, तो फिर तो वो टेरिटरी को सिक्योर करके भी आप लोगों का बेसिक जो नेचर है उसको नहीं चेंज कर सकते हो. एंड इवेंचुअली दे विल कॉन्फ्लिक्ट इन दो स्टेट्स, और दोज इंडिविजुअल्स विल कॉन्फ्लिक्ट, एंटर टू कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, ठीक है. तो यहां पर हॉब्स का जो एब्सोल्यूटिस्ट आइडिया है एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट का, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज, एक इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ने, लिबरल्स ने बताया है. अब जो लिबरल्स की थ्योरी है, अगेन आई विल नॉट रिपीट इट, बिकॉज जो लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस है, मैंने इसीलिए ये अप्रोचेस पहले पढ़ाई थी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द अपकमिंग लेक्चर, द फ्यूचर लेक्चर्स, ओके. तो जो लिबरल्स हैं वो ये बात कहते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो सेंट्रलाइज्ड एक अथॉरिटी बनाना नहीं है कि आप सारी पावर एक मोनार्क के रूलर के हाथ में दे दो. इसका सॉल्यूशन है कि आप रिलायबल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाओ, ताकि वहां पे चेक एंड बैलेंस रहे, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन होना, रूल ऑफ लॉ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, तो ऑब्वियसली जो ये प्रिडेटरी स्टेट है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है. आप इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकते हो उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए, और साथ ही साथ आप सोशल वेलफेयर भी कर सकते हो जो भी डिप्राइव्ड या वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, ठीक है. तो लिबरल्स बार बार जोर देते हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस बनाओ, आप इंस्टीट्यूशंस करो, फॉर्मलाइज करो, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप ये सारी चीजें करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट या सॉवरेन के जो प्रोमिसेस है वो क्रेडिबल तभी बनते हैं, ठीक है. और इंटरनेशनल सोवरेनिटी तो रेसिप्रोसिटी और इक्वालिटी पे चलती है. अगर इंडिया एज अ कंट्री सेज और स्टेट सेज दैट वी आर अ सॉवरेन कंट्री, बट उनको दूसरे से रिकॉग्निशन ही नहीं मिलती है, तो फिर क्या है, द कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर. कॉन्फ्लिक्ट तो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है. पैलेस्टीन अपने आप को, पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है. पैलेस्टीन इज नॉट रिकॉग्नाइज, वो अपने इतने सालों से इट हैज बीन फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, क्योंकि सॉवरेनिटी का इशू है, रिकॉग्निशन का इशू है. इंटरनेशनल रेल में उसको वो रेसिप्रोसिटी नहीं मिल रही है दूसरे स्टेट से, ठीक है. हालांकि एट पॉइंट्स दिस आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म इज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड, ठीक है. बोलते हैं कि ये आइडियल है,
इंस्टीट्यूशंस बनाने से या इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव खाली बनाने से, अगर आपको सब्सटैंटिवली उस पर काम ना करो, सिर्फ प्रोसीजरली उसका स्ट्रक्चर बना दो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इट्स यूजलेस इन दैट सेंस, क्योंकि ये बहुत ही आइडियल बात है, ठीक है। वी हैव क्रिएटेड इंस्टीट्यूशंस, यूएन इज अगेन एन इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बट जब इनकी वर्किंग की बात आती है, आज भी इंडिया या बहुत सारी कंट्रीज को, नॉट ओनली इंडिया बट बहुत सारी जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब है, उन्हें इन इंस्टीट्यूशन से शिकायत है कि हमें अपना जो ड्यू है वो इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिला है, समवेयर वी आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस है वो ये सारी चीजों को भी कंटिन्यूसली, ये सारे इश्यूज को फेस कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द आइडिया ऑफ अलेक्जेंडर वेंट। अलेक्जेंडर वेंट इस सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है उनके ये प्रोपाउंडर रहे गए हैं, और इनके हिसाब से द स्टेट्स विल इंटरनेशनलाइज सोवरेनिटी नॉर्म्स फॉर पीसफुल ट्रांसनेशनल रिलेशंस, की जो स्टेट्स है वो सोवरेनिटी नॉर्म्स को अपने हिसाब से जरूर इंटरनेशनलाइज कर दें, क्योंकि अगर हम अगर हम इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली स्टेट के पास ऑप्शन नहीं है, वो अपने ककून में रह नहीं सकता है, इट हैज टू इंटरैक्ट विद द अदर स्टेट्स, ठीक है। इंटर स्टेट रिलेशंस वो डेवलप करेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और जब वो ये सब करेगा तो अपनी सोवरेनिटी को वो इंटरनेशनलाइज जरूर करेगा, मतलब अपनी सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करने की पूरी कोशिश करेगा। ये सारी चीजों पे ये लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्टेट का जो आइडिया है कि मतलब स्टेट का क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसका क्या गोल है, एक्सेट्रा। सो जो स्टेट है उसका नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ऑब्वियसली क्योंकि शुरुआत में देयर वाज ओनली दिस क्वेस्ट फॉर नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि उस समय देयर वाज अ नीड कि जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सारे स्टेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, दे आर ऑब्वियसली establishing their own political institutions, कि obviously they will try to establish their own political institutions, कि political institutions को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, स्टेट कंस्ट्रक्शंस के लिए, क्योंकि उन्हें सोवरेनिटी मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है, तो वो सारे इश्यूज है आज भी। देन देयर आर टाइप्स ऑफ स्टेट्स, कैपिटलिस्ट स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, आपने पहले पढ़ा होगा। कैपिटल स्टेट्स प्राइवेट एंटरप्राइज पे जोर देते हैं, सोशलिस्ट स्टेट आपके कलेक्टिवाइज, लाइक यूएसएसआर एक्सेट्रा, दे फोकस ऑन द कलेक्टिवाइज्ड आइडिया, ठीक है। और इन दोनों का जो बीच का एक मॉडल है, दैट इज द वेलफेयर स्टेट। जो कीन्स जो आइडिया है यूके का, ही इज द फिलोसोफर ऑफ यूके, स्कॉलर फ्रॉम यूके, वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट आपको प्राइवेट इंटरप्राइज करने का भी पूरा मौका देता है, साथ ही साथ इट इंश्योर्स दैट प्रोस्पेरिटी तो मिले ही मिले, बट अलोंग विद दिस देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस फ्रॉम सोशल डेप्राइवेशन, कि जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको आप पीछे ना छोड़े, उनके साथ मिलकर आप डेवलपमेंट और ग्रोथ को अंजाम दे, और साथ साथ कलेक्टिवली फ्लरिश करें, ठीक है। 1980s और 1990s में कंपटीशन या मार्केट स्टेट बनाया गया था, ठीक है, और ये सब हुआ ग्लोबलाइजेशन के बैकड्रॉप पे। ऑफ कोर्स यहां पे जो आइडिया है, इट इज अबाउट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन स्टेट है, मार्केट स्टेट है, तो दे आर वर्किंग ऑन द प्राइवेट एंटरप्राइज कि आप फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कैसे लाते हो, ठीक है। जब फॉरेन कंपटीशन आएगा, सो दे बिलीव द क्वालिटी विल आल्सो इवेंचुअली एनहांस, और साथ ही साथ आपकी लेबर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कि लेबर का जो नॉर्म्स है उनको भी रिवाइव किया गया है, साथ ही साथ चेंजेस किए गए हैं, रिफॉर्मेशन हुए हैं लेबर नॉर्म्स में, और लेबर को भी एज अ फ्लेक्सिबल कमोडिटी की तरह ट्रीट किया गया है। आगे फुटलूज इंडस्ट्रीज है, फुटलूज इंडस्ट्रीज दे आर वर्किंग ऑन द आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, क्योंकि अब जो प्रोडक्शन की बात होती है या इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इट इज ऑल जो ये ट्रांसनेशनल एमएनसीज है, टीएनसीज है, वो सारा मतलब एक अब अपने बॉर्डर्स के, स्टेट बॉर्डर्स से बियॉन्ड ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। Therefore, the state has transformed from the Keynesian welfare state to a Schumpeterian competition state. Schumpeter, Joseph Schumpeter is also a philosopher, और वो कंपटीशन स्टेट की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जो कीन्स का वेलफेयर स्टेट है, उसने तो मतलब इट हैज रिजल्टेड इन द ड्रेनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि मतलब वेलफेयर के नाम पे वी आर रनिंग इनटू डेट्स, वी आर रनिंग इनटू डेफिसिट, वी आर फेसिंग फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कॉम्पिटिशन स्टेट लाओ, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी लाओ, एंटरप्रेन्योरशिप
को बहुत ज्यादा जोर देता है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम प्राइवेट प्लेयर्स को मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे टू पार्टिसिपेट, सिर्फ वेलफेयर का या फिर फ्रीबीज बांटने से वी कैन नॉट इंश्योर अवर डेवलपमेंट, स्पेशली इन द ग्लोबलाइज्ड एरा. सो वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स प्राइवेट एंटरप्राइज, वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरिज्म. ठीक है, कि आप मोटिवेट करो पीपल को. एक मेक इन इंडिया, अगर हमारा इनिशिएटिव ले मेक इन इंडिया, और बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आर देयर, मुद्रा योजना इज देयर. सो ये सारे जो पॉलिसीज है, इट इज वर्किंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरिज्म, कि आप एंटरप्रेन्योर लो, स्किल्स को सीखो. ठीक है, स्किल्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन योर क्वालिटी एज वेल एज वर्क ऑन योर डेवलपमेंट. ओके, पहले के टाइम पे देयर वाज अ प्री मॉडर्न स्टेट, बट आज के टाइम पे देयर इज अ पोस्ट मॉडर्न स्टेट, जो कि कॉम्प्लेक्स है काफी, सेंट्रलाइजेशन काफी कम हो चुकी है और प्लूरल है वो, क्योंकि खाली स्टेट नहीं है, स्टेट के साथ बहुत सारे अदर नॉन स्टेट एक्टर्स है जो इक्वली आपके साथ डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, और लास्ट में जो एक छोटा आइडिया है वीक और फेल्ड स्टेट्स का. ठीक है, अगर आप देखेंगे सब सहारन अफ्रीका में देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ वीक स्टेट्स, क्योंकि वहां पर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिस्टम नहीं है, फ्रीक्वेंट इंस्टेबिलिटीज होती रहती है, मिलिट्री कूज होते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट what is happening is external interventions provoke होते हैं. तो एक्सटर्नल बाहर से कंट्रीज इंटरवीन कर रही हैं, दे आर रिजल्टिंग क्या होता है, मेसअप हो जाती है सारी चीजें. देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज वायलेंस इन दोज कंट्रीज, फ्रीडम जो है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इवेंचुअली दैट ऑल्सो फॉल्स. सो जो वीक और फेल्ड स्टेट्स है, फ्रेजाइल स्टेट्स है, वो सारे भी आते हैं, कि स्पेशली व्हेन यू आर इन अ ग्लोबलाइज्ड एरा. ओके, थिंग्स आर नॉट कंट्रोल सेंट्रलाइज, क्योंकि आप सेंट्रलाइजेशन पे बहुत कम काम हुए. नाउ थिंग्स आर गेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड, डिवॉल्व्ड. ठीक है, डिवॉल्व्ड इसे बोलते हैं. तो यहाँ पर वीक और जो फेल्ड स्टेट्स है वो भी एक एग्जांपल है, कि अगर आप स्टेट्स की सोवरेनिटी को इंटैक्ट नहीं रखते हो, रूल ऑफ लॉ या लॉ एंड ऑर्डर को इंटैक्ट नहीं रखते हो, देन इवेंचुअली इट कैन रिजल्ट इनटू अ फेल्ड स्टेट. ओके, एंड स्टेट ग्लोबलाइजेशन में उसकी सारी डिबेट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी है, हाइपर ग्लोबलिस्ट, स्केप्टिक्स, ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट. आप ग्लोबलाइजेशन का इससे प्रीवियस लेक्चर देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड इट. तो वहां पे वो स्टेट की रेलेवेंसी डिस्कस करते हैं. साथ ही साथ दे ऑल्सो ट्राई टू हाईलाइट द पोस्ट सॉवरन गवर्नेंस. ठीक है, तो अब मतलब जो गवर्नेंस है वो सॉवरन तो है ही, मतलब स्टेट एज अ सॉवरन एंटिटी तो प्रेजेंट है ही, बट साथ ही साथ उनका बहुत सारे बियॉन्ड द स्टेट बहुत सारे और एक्सटर्नल एक्टर्स है जो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. परमिएबिलिटी ऑफ स्टेट, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है, माइग्रेशन है, तो ऑब्वियसली स्टेट के बॉर्डर्स जो है वो परमिएबल हो चुके हैं ओवर टाइम. ठीक है, राइज ऑफ सुप्रा टेरिटोरियलिटी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि मैंने बताया जो टीएनसीज है, एमएनसीज हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, नाउ दे आर नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर टेरिटरी. कोई भी अमेरिकन कंपनी होगी, इट मे बी हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क, वहां पर होंगे, बट उनकी जो सब यूनिट्स है वो पूरे ग्लोब में फैली हुई होंगी. ठीक है, तो अब टेरिटरी के बियॉन्ड एक तरीके से ऑपरेशंस होते हैं प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट को लेके. दिस वी विल डील इन द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे. एंड ऑब्वियसली स्टेट्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इंटरैक्ट करे, उनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड रेजिम्स में पार्टिसिपेट करे, कंसेंसस बिल्डिंग करे फॉर मीनिंगफुल आउटकम्स. और एक कंसेप्ट है पूल्ड सोवरेनिटी का, जहां पे पावर ट्रांसेंड होती है फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट टू द सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस, की अब जो सोवरेनिटी थी जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास थी, अब वो धीरे धीरे सुप्रा, जो स्टेट के बियॉन्ड मतलब इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास उनकी जो पावर है वो जा रही है. ठीक है, तो एक जो चेंज आया है, इट इज फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस. ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो हायरार्किकल है एक्चुअली, बट जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं वो सब्सटैंटिव पार्ट आता है. तो जब जैसे हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं होता, इट इज हाउ दोज इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली बिहेविंग, वो कैसे ऑपरेट कर रही है. ठीक है, तो बड़ी सरकार नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहिए, बिग गवर्नमेंट्स को आप डिसमेंटल करो और आप स्टीयरिंग रोल, मतलब गवर्नमेंट वो जो टारगेट्स को सेट करे, गवर्नमेंट का विद इन उसको रिवैम्प करो, चेंज करो, री इन्वेंट करो,
ताकि वो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बना सके और अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। कॉन्ट्रैक्ट करो, व्हाई नॉट, जस्ट इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर बिकॉज दे विल हेल्प यू। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट करो, बिकॉज अगर आप पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट में अगर आप चेंजेस नहीं लाओगे, ठीक है, इवेंचुअली विल नॉट इंक्लूड द प्राइवेट सेक्टर, देन धीरे धीरे वो रॉटन हो जाएगा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने देखा है आईआरसीटीसी इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि वहां पर बहुत सारी केटरिंग सर्विसेज, बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज कर दी एंड यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट। ओके, इम्प्रूवमेंट है। पहले जैसे रेलवे का खाना वाना था, अगर आपने देखा होगा, एंड नाउ देयर हैज बीन अ लीप इम्प्रूव, एक लीप हुआ है, एक अच्छा मतलब जंप हुआ है in terms of quality, because things you have contracted out, जहां पे भी साफ सफाई है, क्लीनिंग है या केटरिंग है, इन सारी चीजों को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, प्राइवेट प्लेयर्स को, पार्टनर्स को इनवाइट किया है, ठीक है। जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं, वहां पर भी ये प्राइवेट एंटरप्राइज को इंक्लूड करना, मोटिवेट करने का एक अटेम्प्ट है। तो वो सारी चीजें करो। नेटवर्क स्टेट एंड सोसाइटी, वो बोल रहे हैं कि अब पॉलिसी नेटवर्क्स है, सिर्फ ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट है, एक इंस्टीट्यूशन है, बस वो उसी से ही रिलेटेड काम करेगा, दूसरे इंस्टीट्यूशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, जो पहले होता था। बट अब आपका नेटवर्क स्टेट है, सोसाइटी है, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर इंटर रिलेटेड, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी है ताकि हायरार्कीज को हटा के हम नेटवर्क्स पे काम कर सके और मल्टी लेवल गवर्नेंस को बना सके। तो मल्टी लेवल गवर्नेंस एक चेंज आया है फ्रॉम द नेशनल लेवल गवर्नमेंट, स्पेशली जब स्टेट पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को विटनेस किया है। तो एक सकिंग अप प्रोसेस हुआ है, मतलब कि जो रीजनल और ग्लोबल गवर्नेंस है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, और ड्रॉन डाउन प्रोसेस कि आपने बहुत सारी चीजें डिसेंट्रलाइज भी करी है, लोकल ऑटोनॉमी भी आपने दी है। और इसका जो एक उल्टा मतलब एक एंटीथीसिस है, वो है आपका ग्लोकलाइजेशन। रॉबर्टसन का ये आइडिया है, ग्लोकलाइजेशन मतलब ग्लोबल और लोकल। यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो साथ ही साथ उसमें कुछ लोकल फैक्टर्स भी उसको इंपैक्ट किया है, ठीक है। तो लोकल लेवल पे भी चीजें बदली हैं, जैसे एथनिक नेशनलिज्म। अब आप, ठीक है, यू आर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज, बट हम उसे देख के अपनी इंडिजीनियस स्वदेशी चीजें बना रहे हैं। हाँ, वेस्टर्न जीन्स वॉज वेरी पॉपुलर, वेस्टर्न बर्गर्स वर वेरी पॉपुलर, वेफर्स एंड स्नैक्स वर वेरी पॉपुलर, उनका जो फास्ट फूड है दैट वॉज वेरी पॉपुलर, पैकेज्ड फूड। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, पतंजलि भी वो चीजें बना रहा है। ओके, डोमेस्टिक जो बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स है, हल्दीराम, पतंजलि, हल्दीराम, जो भी ये सारे लोकल हमारे डोमेस्टिक पार्टनर्स हैं, वो सारे इन चीजों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम इन्हें कैसे लोकल टच दे सकते हैं, कि अपनी हम जो मतलब आइडिया है, एसेंस है, उसको भी ना खोएं, ठीक है। इसको जब एक्सट्रीम हो जाता है, अग्रेसिव वे में जाता है, तो वो एथनिक नेशनलिज्म बन जाता है, कि आपका सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज आ जाती है, कि आपको फिर आप इस तरीके के ओरिएंटेशन में आ जाते हो कि यू डू नॉट नीड एनीथिंग इंटरनेशनल एंड यू जस्ट वांट योर लोकल थिंग्स। तो आप एथनिक मतलब आप अपने आप फिर आप डिस्क्रिमिनेटरी और अग्रेसिव चीजों पे चले जाते हो। तो इसका जो पॉलिटिक्स ऑफ एथनिक नेशनलिज्म है, वो उसका एक मतलब एक नेगेटिव आउटकम हम बोल सकते हैं। तो देयर इज अ डायग्राम, नेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट, डिवॉल्व बॉडीज आपस में कैसे कैसे इंटरैक्ट करती है। तो अब एक तरीके का हायरार्की नहीं है, इंटरैक्शन बढ़ चुका है, ठीक है, पार्टिसिपेशन एंड डायलॉग बढ़ चुका है, ठीक है। और कंक्लूजन में अगर हम स्टेट की बात करें, हाइपर ग्लोबलिस्ट तो कहते हैं कि स्टेट तो हॉलो आउट हो चुका है, बट नहीं, स्टेट का कहीं ना कहीं रेलेवेंस आज भी बना हुआ है। रिटर्न ऑफ स्टेट, जैसे ट्रांसनेशनल टेररिज्म, कि अब हम नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स की बात करते हैं, स्पेशली जब 9/11 अटैक्स हुए हैं उसके बाद से ये चीजें काफी पॉपुलर हो चुकी है, कि मतलब स्टेट एज अ एक्टर, कि स्टेट के पास ही पावर है सर्वेलेंस की, डिटेंशन की, और वही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सका है। जब 9/11 अटैक्स हुए थे, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर दिया गया था, तो थिंग्स आर दैट अमेरिका नाउ विल नॉट स्टैंड एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस और एनी सॉर्ट ऑफ टेररिज्म, टेरर के अगेंस्ट बढ़ना। तो यहाँ पे सर्वेलेंस, डिटेंशन, तो वो भी तो स्टेट का ही पार्ट है। आज हम देखते हैं इवन इन इंडिया ऑल्सो वी सी, हर एक बस स्टॉप्स पे हर जगह सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करना, सर्वेलेंस करना, रोड्स की मॉनिटरिंग करना, इंस्टीट्यूशंस की मॉनिटरिंग करना, ये भी तो एक सर्वेलेंस है, यहां से भी तो डेटा जनरेट होता है। सो दैट इज ऑल कंट्रोल बाय द स्टेट, ठीक है। स्टिल
देन स्टेट एज अ एजेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि आज अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें और अगर हमने सब चीजें मार्केट पे छोड़ दी तो इट मे नॉट एट सम टाइम्स ब्रिंग फेयर कंपटीशन। तो जब वो अगर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आप छोड़ दोगे तो दे मे नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर, दे मे नॉट वर्क फॉर समथिंग विच इज चैरिटेबल और हैज टू बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बट द स्टेट विल, state will try to boost economic development along with human development और modernize करने का उसका रोल आ चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेट बिल्डिंग सस्टेनेबल पीस डेवलपमेंट, कि आप ह्यूमैनिटेरियन बिलीफ है, सस्टेनेबल पीस है, अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑफ कोर्स द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस डू कम इन टू रेस्क्यू, बट अगर स्टेट वहां पर रिलीफ प्रोवाइड करता है, स्टेट यहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड्स प्रोवाइड करता है, तो आज भी स्टेट का जो रोल है इट इज स्टिल देयर, इट इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट समझ में नहीं आया, लाइक शुम्पिटर, हॉब्स का आइडिया, रूसो का आइडिया, सो मैक्स वेबर का आइडिया, सो आई विल ट्राई टू गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट सेक्शन ओनली, ओके। अदरवाइज द पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम माय साइड इट्स कंप्लीट. Please do like, share, comments and subscribe. All the new learners also who are joining in, and we will be soon coming with the economic aspect of globalization. So stay tuned. Bye bye.